Good afternoon, everyone. A very warm welcome to today's session. So, let us begin our session with a short meditation. Sit back comfortably. Sit comfortably with your spine erect. Straighten your spinal cord. Today, I'm gonna share about 5 bodies and we will feel each one. You may close your eyes now and feel your body. When I say your body, the body which you can see, which you can feel, it is the grossest body and it's called Annamaya Kosh. It's made up of the 5 elements of nature: with earth, water, fire, air, and space. The second layer underneath this Annamaya Kosh is called the Pranamaya Kosh. The prana is the life-giving force to your gross body. That is your Annamaya Kosh. To strengthen this, we need to deep breathe, do some pranayama. So now, I request you all to strengthen your pranamaya kosha. Let's do deep breathing for a few seconds. Exhale fully. And as you inhale, feel the freshness in the air, the life-giving force that this air element has. Inhale fully. Fill your छोटी सी lungs. बच्ची को रेस्क्यू किया था। Fill your lungs. And this time, as you exhale, consciously remove any stress, anxiety, or negativity that you were holding just a few moments ago. Take a deep breath in, and this time, promise yourself to take care of yourself really very well. Today, we learned about 2 bodies, 2 of the grossest bodies. Now, the 3 other bodies that remain, we will discuss it later, with a promise to take care of yourself fully. Thank you so much. Om Shanti.
Let me share the screen. I hope the screen is visible to all. Yes, sister, it's visible. Thank you. Thank you, Ritu sister. Thank you, Teja sister. Today we will start from becoming emotionally mature. What the other person says or does cannot really annoy or irritate you except you permit him to disturb. अगर कोई हमें कुछ कहता है या कुछ करता है और हम कहते हैं कि इस हरकत से हम इरिटेट हो जाते हैं, हम अनॉयड करते हैं और फिर कह रहे हैं कि दूसरा पर्सन कुछ करे, वो हमें रियली अनॉय या इरिटेट नहीं कर सकता जब तक कि हम उसे परमिट ना करें कि वो हमें डिस्टर्ब कर पाए। आज ही एक कोट पढ़ा था, उसमें था कि जो परिस्थितियां होती है वो हमें तब तक नहीं परेशान कर सकती जब तक हम उनके ऊपर ध्यान न दें। अगर हम उनके ऊपर ध्यान देते हैं तभी वो पावरफुल बनती है। तो सामने वाला पर्सन हो चाहे कोई सिचुएशन हो हमारी लाइफ में, अगर हम उन्हें उनके ऊपर ध्यान देते हैं ना तभी उनमें कुछ पावर रह जाती है। अगर कुछ नेगेटिव चीज है तो उसके ऊपर इतना ध्यान दे ही ना। और इस चीज से बीके शिवानी का भी एक कोट याद आया, देयर एनर्जी फ्लोज थिंग्स ग्रो। नहीं, where attention goes energy flows and where energy flows things grow। तो जहाँ पे हम अपना अटेंशन देते हैं उधर पे हमारी एनर्जी जाती है और वो चीज फिर ग्रो भी करती है। तो अगर कुछ नेगेटिव सिचुएशन है उसी पे हम ज्यादा ध्यान लगाएंगे, उसी के बारे में चिंतन करेंगे, उसी के बारे में सोचते रहेंगे, उसको अटेंशन देंगे, तो जो हमारी एनर्जी है प्रेजेंट में वो उस उधर ज्यादा जाएगी। इसीलिए बीके शिवानी कहती है कि कोई सिचुएशन भी होती है तभी भी उसे हमें दुआ देनी है, हमें उसमें पॉजिटिव ही खोजना है, उसको बहुत अच्छे से दुआ देनी है, उसको मतलब अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखना है। क्योंकि हम अपना जब अपने थॉट्स पे अटेंशन रखेंगे, पॉजिटिव एनर्जी देंगे, तो वो पॉजिटिव रूप से ग्रो करेगा। तो ये सिचुएशन और पर्सन दोनों में ही एप्लीकेबल है। The only way he can annoy you is through your own thought. For example, if you get angry, you have to go through 4 stages in your mind. You begin to think about what he said. You decide to get angry and generate an emotion of rage. Then you decide to act. Perhaps you talk back and react in kind. You see that the thought, emotion, reaction, and action all take place in your mind. तो जब हम एंग्री होते हैं तो उसमें हमें 4 स्टेजेस से हम गो थ्रू करते हैं। पहला क्या होता है, पहले हम सोचने लग जाते हैं इसने कहा क्या, इन्होंने क्या कहा। पहले तो हमने अपने माइंड में वो बात दोबारा दोहराई कि इसने ऐसे कैसे कह दिया, इसकी हिम्मत कैसे हुई। फिर हम डिसाइड करते हैं कि हम उस चीज के ऊपर एंग्री हो, अपने मन में एक रेज वाला इमोशन जनरेट करते हैं। क्योंकि जो हमारी थिंकिंग होती है उस अकॉर्डिंग हमारी फीलिंग भी होने लग जाती है। तो जब हम थिंकिंग करते हैं कि इसने क्या कहा, उसके बाद हम फील करने लग जाते हैं उस चीज को, उस एंगर को फील करते हैं। और फिर हम डिसाइड करते हैं, अपने माइंड में ही सब कुछ चल रहा है अभी हमारे, कि हम डिसाइड करते हैं अब हमें एक्ट करना है। तो हम या तो उससे टॉक बैक करेंगे, दोबारा करेंगे, या फिर रिएक्ट करेंगे। तो ये हो जाता है रिएक्शन। तो ऐसे हम क्या देखते हैं, जो हमारा थॉट है, इमोशन, रिएक्शन और एक्शन, ये सब कुछ हमारे माइंड में ही चलता है। When you become emotionally mature, you do not respond negatively to the criticism and resentment of others. To do so would mean that you had descended to that state of low mental vibration and become one with the negative atmosphere of the other.
Identify yourself with your aim in life and do not permit any person, place, or thing to deflect you from your inner sense of peace, tranquility, and radiant health. जब हम इमोशनली मैच्योर हो जाते हैं तब हम नेगेटिवली रिस्पॉन्ड नहीं करते क्रिटिसिज्म और रिजेंटमेंट से। जब हम मैच्योर नहीं होते पूरे तरह से तब हम क्या करते हैं, हम अपने माइंड में ये चार स्टेजेस के थ्रू गो थ्रू करके फिर हम रिएक्ट करते हैं। लेकिन जब हम मैच्योर होते हैं तो हमें पता होता है कि हमारे अंदर में जो पीस है, ट्रैंक्विलिटी, रेडिएंट हेल्थ, उससे हमें अलग नहीं होना है। तो हम एकदम स्टेबल होते हैं, इमोशनली मैच्योर हम तब कहे जाते हैं। द मीनिंग ऑफ लव इन हार्मोनियस ह्यूमन रिलेशंस। जो ह्यूमन रिलेशंस है हार्मोनियस, उसमें क्या होगा मीनिंग ऑफ लव? Sigmund Freud, the Austrian founder of psychoanalysis, said that unless the personality has love, it sickens and dies. ये जो सिगमंड फ्रूड है, इन्होंने कहा कि जब तक हमारी पर्सनालिटी में ही लव नहीं होता है तब फिर वो सिकन होता है, खराब हो जाता है, डाई और मर जाता है। लव इंक्लूड्स अंडरस्टैंडिंग, गुडविल एंड रिस्पेक्ट फॉर द डिविनिटी इन द अदर पर्सन। तो हमारा दूसरों के प्रति हमारा प्रेम भाव है, लव है। ये हमें कैसे समझ आएगा? अगर लव होगा तो हमारे मन में अंडरस्टैंडिंग होगी, सामने वाले के लिए गुडविल होगी, एक रिस्पेक्ट होगी कि जो दूसरा पर्सन है उसके अंदर में जो डिविनिटी है, जो अच्छाई है, उसके लिए हम अंडरस्टैंडिंग रखेंगे, गुडविल, रेस्पेक्ट रखेंगे अपने मन में, तो वो लव में काउंट होगा। द मोर लव एंड गुडविल यू emanate and exude, the more comes back to you. जितना ज्यादा हम प्यार देंगे, गुडविल देंगे, रेस्पेक्ट देंगे, उतना ही ज्यादा उतना ही ज्यादा हमारे तरफ भी वापस आएगा, हमारे पास लौट आएगा। तो ऐसे कहा जाता है कि जितना हम इमिट करते हैं हमारे पास फिर मल्टीफोल्ड आता है, वो कई गुना ज्यादा आता है। तो चाहे हम लव करें, रेडिएट, चाहे कोई और इमोशन करे, तो पहले हमें देना होता है। आजकल कहा जाता है ना कि पहले हमें जो मिलेगा सामने वाले से वही हम उससे भी देंगे मिरर करके। लेकिन रियल में वो होता है कि हमसे जो रेडिएट होके जाता है वही हम तक वापस आता है। इफ यू पंक्चर द अदर फेलोज ईगो एंड वुंड his is his estimate of himself, you cannot gain his goodwill। अगर हम दूसरे का ego, उसके बारे में जो उसकी इमेज है उसको चोट पहुंचाएंगे तब फिर हमें गुडविल नहीं मिलेगी। Recognize that every man wants to be loved and appreciated and made to feel important in the world। ये बात हमें याद रखना होगा कि जितने भी लोग हैं दुनिया में, सबको प्यार चाहिए होता है, एप्रिसिएशन चाहिए होता है। सब इस दुनिया में इम्पोर्टेंट ही होते हैं, कोई भी तुच्छ नहीं होता है, कोई भी छोटा नहीं होता, इंफीरियर सुपीरियर वैसा नहीं। Realize that the other man is conscious of his true worth and that, like yourself, he feels the dignity of being an expression of the one life principle animating all men। As you do this consciously and knowingly, you build the other person up and he returns your love and goodwill। तो हम इन बातों का ध्यान रखेंगे, कॉन्शियसली हम लव देंगे, उनको रिस्पेक्ट देंगे, तो फिर क्या होगा, वो भी हमें लव और गुडविल रिटर्न में देगा। He hated audiences। An actor told me that the audience booed and hissed him on his first appearance on the stage। He added that the play was badly written and that undoubtedly he did not play a good role। He admitted openly to me that for months afterward he hated audiences। He called them dopes, dummies, stupid, ignorant, gullible, etc. He quit the stage in disgust and went to work in a drugstore for a year। One day, a friend invited him to hear a lecture at Town Hall, New York City, on how to get along
with ourselves. This lecture changed his life. He went back to the stage and began to pray sincerely for the audience and himself. He poured out love and goodwill every night before appearing on the stage. He made it a habit to claim that the peace of God filled the hearts of all present, and that all present were lifted up and inspired. During each performance, he sent out love vibrations to the audience. Today, he is a great actor and he loves and respects people. His goodwill and esteem are transmitted to others and are felt by them. तो यहाँ पे एक एक्टर की स्टोरी है जो कि ऑडियंस को हेट करते थे। उनका रीजन क्या था? फर्स्ट टाइम जब उन्होंने स्टेज अपीयरेंस दी थी तो उस वक्त जो स्क्रिप्ट थी वो अच्छी नहीं लिखी हुई थी और इस वजह से उनका भी जो रोल था वो भी एक अच्छा रोल नहीं था, वो एक अच्छा रोल नहीं प्ले कर पाए थे और ऑडियंस ने उन्हें पसंद भी नहीं किया। उसके बाद में ये भी ऑडियंस को हेट करने लगे, उन्हें डोप्स, डमी, स्टूपिड, इग्नोरेंट, गलिबल ऐसे ऐसे नामों से बुलाने लगे। और एक बार क्या हुआ, इन्होंने ऑथर का एक लेक्चर सुना, हाउ टू गेट अलोंग विद आवरसेल्व्स, जिसके बाद इस लेक्चर के बाद में उस एक्टर की लाइफ चेंज हो जाती है। वो हर रात जब भी उनका परफॉर्मेंस होता है उससे पहले वो प्रे करते हैं ऑडियंस के लिए और खुद के लिए, उन्हें लव वाइब्रेशंस भेजते हैं और ये क्लेम करते हैं कि जो गॉड से जो पीस मिल रही है वो फिल कर दे रही है सबके हर्ट्स को, सबके दिलों को। वो गॉड से जो शांति मिल रही है उससे सब फिल हो, सबका हर्ट फिल हो जा रहा है, सब लिफ्टेड अप है, इंस्पायर्ड है। तो इस तरह से जब वो सिंसियरली प्रे करते हैं तो उसका उन्हें रिजल्ट मिलता है, वो एक ग्रेट एक्टर बन जाते हैं, लोगों को प्यार और सम्मान देते हैं और लोग भी उन्हें प्यार और सम्मान देते हैं। हैंडलिंग डिफिकल्ट पीपल, ये काफी लोगों को क्वेश्चन हो सकता है कि डिफिकल्ट पीपल को कैसे हैंडल किया जाए, तो इसके लिए ऑथर बता रहे हैं, देर आर डिफिकल्ट पीपल इन द वर्ल्ड हु आर ट्विस्टेड एंड डिस्टॉर्टेड मेंटली, दे आर mal conditioned. Many are mental delinquents, argumentative, uncooperative, cantankerous, cynical, and sore on life. They are sick psychologically. Many people have deformed and distorted minds, probably warped through childhood. Many have congenital deformities. You would not condemn a person who had tuberculosis, nor should you condemn a person who is mentally ill. No one, for example, hates or resents a hunchback. There are many mental hunchbacks. You should have compassion and understanding. To understand all is to forgive all. तो जब हम किसी को लेते हैं ना कि वो डिफिकल्ट है, कि वो ऐसे ही है, ये एक बहुत मतलब सटल चीज है, लेकिन जब हम मेंटली किसी को अगर लेवल कर देते हैं कि ये डिफिकल्ट है, इसके साथ बात करना ही ऐसा है, इस तरह से पहली बात तो हमें किसी को लेवल नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात क्या है, जैसे हमें अभी इतनी सारी अंडरस्टैंडिंग मिली है, कितने ट्रॉमास से लोग गुजरते हैं, चाइल्डहुड ट्रॉमास होते हैं, उनके पास्ट संस्कार होते हैं, उनके पास्ट बर्थ से काफी सारे संस्कार कैरी फॉरवर्ड होके आते रहते हैं। तो जो लोग हैं वो खराब नहीं होते हैं, उनके जो अभी के इमर्ज्ड जो संस्कार हैं वो वैसे हैं। और हमें ये हमेशा याद रखना है कि हर एक सोल प्योर होती है और सब सुप्रीम के ही चाइल्ड है। तो इस तरह से जब हम सोचेंगे तो हमारे मन में सबके लिए प्यार और सम्मान की भावना रहेगी, एक इक्वालिटी वाली भावना आएगी। और ऑथर कह रहे हैं कि कोई भी ऐसा होता है ना तो उसके लिए भी हमारा पैशन और अंडरस्टैंडिंग रखनी है, उन्हें समझना है, समझने की कोशिश करनी है कि वो ऐसे क्यों है, कुछ ना कुछ रीजन होगा। और कंपैशन, करुणा रखनी है सब जीवों के प्रति। और जब हम सबको अंडरस्टैंड करते हैं उसका मतलब क्या है कि हम सबको फॉरगिव भी कर रहे हैं। एक और चैप्टर था जिसमें फॉरगिवनेस के बारे में काफी ज्यादा डिटेल में लिखा गया था।
उसमें स्लीप से रिलेटेड था ना कि एक जन स्लीप मतलब अच्छे से नींद नहीं ले पाता था, लेकिन जब उसने फॉरगिवनेस वाला ट्राई किया था उसके बाद से उसे अच्छी नींद भी आना बंद कर। तो हमें सबको फॉरगिव करते जाना है हर दिन। मिजरी loves company. The hateful, frustrated, distorted, and twisted personality is out of tune with the infinite. He resents those who are peaceful, happy, and joyous. Usually, he criticizes, condemns, and vilifies those who have been very good and kind to him. His attitude is this: why should they be so happy when he is so miserable? He wants to drag them down to his own level. Misery loves company. When you understand this, we remove unmoved, calm, and dispassion. जो मिजरी होती है, परेशानी होती है, उसको कंपनी काफी पसंद होती है। कंपनी मतलब उसके जैसे ही लोगों की, जो लोग हेटफुल होते हैं, फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, डिस्टॉर्टेड होते हैं, ट्विस्टेड पर्सनालिटी होती है, वो लोग इनफाइनाइट के ट्यून में नहीं रहते, मतलब इनफाइनाइट से ऐसे कनेक्टेड वाला वैसा नहीं रहता है। उनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो अलग हो जाती है। और वो लोग उन सारे लोगों से रिजाइन करते हैं, मतलब उनको पसंद नहीं करते जो भी पीसफुल, हैप्पी, जॉयस होते हैं। उनका ऐसा एटीट्यूड होता है कि ये इतने खुश कैसे रह सकते हैं जबकि मैं मिजरेबल हूँ। तो वो लोग ऐसा सोचते हैं कि जो लोग हैप्पी है उनको भी अपने ही खुद के लेवल में ड्रैग डाउन कर लो, क्योंकि मिजरी को कंपनी बहुत पसंद होती है। तो हमें इस बात को समझना होगा। हमें अपने जो हमारी सीट है उसमें हमें स्टेबल रहना होगा, हमें प्यार रेडिएट करते रहना होगा। इधर पे भी अंडरस्टैंडिंग हमें हो रही है ना कि कुछ लोगों की ऐसी मतलब स्थिति होती है, ऐसी स्टेट होती है, पर वो उनके खुद की लाइफ के सिचुएशंस की वजह से होती है। तो उनके लिए भी हमें नेगेटिव थॉट्स नहीं क्रिएट करना है, उनको भी फॉरगिव करना है, उनको ब्लेसिंग्स देनी है। The practice of empathy in human relations. A girl visited me recently stating that she hated another girl in her office. She gave as her reason that the other girl was prettier, happier, and healthier than she, and in addition, was engaged to the boss of the company where they worked. One day after the marriage had taken place, the crippled daughter by a former marriage of the woman whom she hated came into the office. The child put her arms around her mother and said, Mommy, Mommy, I love my new daddy. Look what he gave. She showed her mother a wonderful new doll. She said to me, my heart went out to that little girl, and I knew how happy she must feel. I got a vision of how happy this woman was. All of a sudden, I felt love for her, and I went into the office and wished her all the happiness in the world, and I meant it. In psychological circles today, this is called empathy, which simply means the imaginative projection of your mental attitude into that of another. She projected her mental mood or the feeling of her hurt into that of the other woman and began to think and look out through the other woman's brain. She was actually thinking and feeling as the other woman and also as the child because she likewise had projected herself into the mind of the child. She was looking out from the vantage point of the child's mother. If tempted to injure or think ill of another, project yourself mentally into the mind of Moses and think from the standpoint of the Ten Commandments. If you are prone to be envious, jealous, or angry, project yourself into the mind of Jesus and think from that standpoint, and you will feel the truth of the words love ye one another. यहाँ पे एक स्टोरी लिखी है, मतलब ऑथर का एक एक्सपीरियंस लिखा है। एक जो गर्ल थी जो अपने ऑफिस में एक और दूसरी कोवर्कर थी उससे काफी ज्यादा जेलस थी, उसको हेट करती थी क्योंकि वो प्रिटियर, हैप्पियर और वेल्दियर थी। जिस कंपनी में वो काम करती थी उधर के बॉस से उसकी एंगेजमेंट भी हो गई थी। उसके बाद में एक दिन
एक बच्चे ने उस अपनी मदर से कहा, मतलब वो जो दूसरी लड़की थी ना जिसकी शादी हुई थी, उससे कहा कि मम्मी मम्मी आई लव माई न्यू डैडी। वो अपने न्यू डैडी को बहुत पसंद करता था। वो चाय और उसे एक वंडरफुल न्यू टॉय दिखा के कहा कि देखो मुझे क्या मिला। तो जैसे ही उस लड़की ने ये सब बातें सुनी, तो उसे बहुत ज्यादा अ, उसके लिए एम्पैथी फील हुआ। और वो फिर उसने जा करके उस लड़की को विश किया ऑल द हैप्पीनेस इन द वर्ल्ड। और सच में पूरा ऐसे होता है ना, कभी कभी हम ब्लेस करते हैं तो एकदम दिल से ब्लेसिंग करते हैं। तो वैसे करके ब्लेसिंग दी। तो अभी उसके मन की जो भी हेट था उस दूसरी लड़की के लिए, वो सब कुछ हट गया। तो ऑथर बताते हैं कि इसको हम एम्पैथी कहते हैं साइकोलॉजिकल सर्कल्स में, जिसमें हम क्या करते हैं कि हम दूसरों के माइंड के थ्रू उनकी सिचुएशन को देखकर इमेजिनेटिव प्रोजेक्शन करते हैं। तो इस लड़की ने भी यही सब फील किया था, और उससे सच में वो फीलिंग होने लग गई कि वो कितनी खुश है। और उसने चाइल्ड के और वो जो मदर है उन दोनों के माइंड के थ्रू वो चीज देखा। तो अब लास्ट पैराग्राफ में ऑथर ने ये बताया कि अगर हम किसी के बारे में खराब सोचते हैं तो पहले हम उनको प्रोजेक्ट करें। प्रोजेक्ट योरसेल्फ मेंटली इनटू द माइंड ऑफ पर्सन। जो दूसरे हैं उसके माइंड, वो हम उसको सोच करके, मतलब कि हम दूसरे के ऐसे कहा जाता है ना कि उनके शूज में खड़े होकर के उनकी लाइफ को देखें। जब हम वैसा सोचते हैं उनके स्टैंड पॉइंट से, तब हमें वो समझ में आता है और हम हमें उसके बाद में जेलस वाला फील नहीं होता। फिर यहाँ पे 10 कमांडमेंट्स के बारे में लिखा गया है, ये शायद बाइबल में है, मैंने पढ़े नहीं है। और जब भी एनवियस, जेलस, एंग्री ये सब फील होता है, तो ऑथर कह रहे हैं कि हमें जेसस के माइंड से सोचना है। और इस स्टैंड पॉइंट से जब हम देखेंगे तो हमें ट्रुथ फील होगा। लव के वन अनदर, एक दूसरे से हमें प्यार करना चाहिए। अपीजमेंट नेवर विंस। Do not permit people to take advantage of you and gain their point by temper tantrums, crying jacks, or so-called heart attacks. These people are dictators who try to enslave you and make you do their bidding. Be firm but kind and refuse to yield. Appeasement never wins. Refuse to contribute to their delinquency, selfishness, and possessiveness. Remember, do not do that which is right. You are here to fulfill your ideal and remain true to the eternal verities and spiritual values of life which are eternal. Give no one in all the world the power to deflect you from your goal, your aim in life, which is to express your hidden talents to the world, to serve humanity, and to reveal more and more of God's wisdom, truth, and beauty to all people in the world. Remain true to your ideal. Know definitely and absolutely that whatever contributes to your peace, happiness, and fulfillment must of necessity bless all men who walk the earth. The harmony of the part is the harmony of the whole, for the whole is in the part, and the part is in the whole. All you owe the other, as Paul says, is love, and love is the fulfilling of the law of health, happiness, and peace of mind. बात समझनी चाहिए कि जो भी हमारी लाइफ में पीस, हैप्पीनेस और फुलफिलमेंट लेकर के आता है, उसके थ्रू, मतलब हमें अपने जो हमें चाहिए होता है उसी चीज को हमें दूसरों को भी ब्लेस करना चाहिए, उनके लिए भी वैसे ही दुआ मांगनी चाहिए जो भी इस अर्थ पे है। तो हार्मनी ऑफ द पार्ट इज द हार्मनी ऑफ द होल, for the whole is in the part and the part is in the whole। जो हार्मनी ऑफ द पार्ट है, मतलब एक जो पार्ट किसी होल, पूरी संपूर्ण सृष्टि का जो एक पार्ट है, मान लेते हैं हम इंडिविजुअल को ले लेते हैं, जैसे कि हम इंडिविजुअल है और ये पूरी सृष्टि है। तो अगर इंडिविजुअल को वो पीस, हैप्पीनेस, फुलफिलमेंट मिलेगी, हार्मनी मिलेगी, तो वो हार्मनी ऑफ द होल है। क्योंकि ये जो पार्ट है, जो इंडिविजुअल्स है, हम लोग हैं, हम सब मिलके इस पूरी सृष्टि को बना रहे हैं।
और ये पूरी सृष्टि के ही हम सब पार्ट हैं। तो हमें इस तरह से सोचना है। और पॉल कहते हैं कि जो लव है, लव इज द फुलफिलिंग ऑफ द लॉ ऑफ हेल्थ, हैप्पीनेस एंड पीस ऑफ लाइफ। तो जब सबकी लाइफ को फुलफिल करता है, ये सोच है कि हमें एकदम लविंग काइंड वैसा बनना है। You may share your takeaways and feedbacks now. Thank you so much. ओम शांति सिस्टर। जानते हैं राधा सिस्टर। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ जी रही है। जी। आज का ये चैप्टर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कल ही पढ़ा था और ऑथर ने बहुत एग्जाम्पल्स दे करके कैसे हम रिश्तों में गड़बड़ करते हैं और फिर दूसरों को ब्लेम करते हैं, इसके बारे में समझाया है कि लोगों को प्रमोशन नहीं मिलते हैं तो वो लोग बॉस को ब्लेम करते हैं। अगर या कुछ काम नहीं हो रहा है तो जॉब को ब्लेम करते हैं, जैसे कोई ही हेट्स इट्स ऑडियंसेस। तो जैसे ही जितना हम हेट्रेड की एनर्जी रखते हैं तो हमारे काम होते ही नहीं। तो ये बताया कि आप प्रेम से आप प्यार के वाइब्रेशंस भेजो तो आपका जो वर्क लाइफ है वहां पर जो रिलेशनशिप्स आप वहाँ मिलते हैं तो वो ठीक होंगे। और फिर ये जो बताया कि हैंडलिंग डिफिकल्ट पीपल, कि कोई आपसे जलता है या फिर कोई इरिटेट करता है जानबूझ करके, या ऐसी कोई ट्रबल्ड जो आत्माएं आपके जीवन में अगर आती है तो आप उनको घृणा की दृष्टि से नहीं देखना है। बस शुभ भावनाओं से रखना। क्यों ये जलन क्यों आती है? क्योंकि उनके पास वो नहीं है, वो परमात्मा का कनेक्शन नहीं है और फिर वो अपने वैल्यू से गिर चुके हैं। तो गिरी हुई आत्माओं को और गिराना नहीं चाहिए। तो यही बात उन्होंने बताई कि जो ऑलरेडी गिर चुके हैं उनको आप हाथ दे के उठाओ, ना कि उसे और गिराओ, ताकि आपका पुण्य भी बने और फिर वो आत्मा जो बेहोश है वो होश में तो आए ऐसे। और ये जो एम्पैथी एम्पैथी वाला, अगर हम हो रही है, हमें कैसा बाहर निकलना है इस नेगेटिव थॉट पैटर्न से। तो उन्होंने बताया कि आप दूसरों के बैकग्राउंड को आप देखिए कि उनका कैसा था जीवन। उनको कोई भी चीज फ्री में मिलती नहीं है। कोई भी सक्सेस हो या कोई भी चीज, अगर किसी के जीवन में बहुत सारे प्यार भरे रिश्ते हैं तो आपको उनको देख के जलन होती है। तो आप जलन होती है, पहले स्वीकार करना है, फिर बाद में उनको उनके लाइफ में आप प्रोजेक्ट करो और फिर देखो कि इनके जीवन में भी संघर्ष रहा है। ऐसे नहीं कि कोई हर चीज सब कुछ फ्री में मिलता है, ऐसा नहीं है। तो ये जलन वाली बात ये बाइबल से ली गई। एक्चुअली एक वेरी फेमस लाइन है कि लव योर नेबर एज योर सेल्फ। ये जो जीसस का है, एक्चुअली ये बुक में नहीं है, पर इट इज अ वेरी फेमस सेइंग कि जलन से ही रिश्ते खराब होते हैं। और फिर अपीसमेंट नेवर विंस, ये जो बोले हैं कि कोई लोग आपके बाउंड्रीज को ब्रेक करते हैं जानबूझ करके। अगर आप कोई ऐसे इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं कि आप मुझसे प्यार करती हो तो आपको ये करना ही पड़ेगा, वरना मैं सोचूंगा कि आप प्यार नहीं करते हो, ऐसे ब्लैकमेल भी करते हैं। तो आपको अपनी बाउंड्रीज रखनी पड़ती है कि दे विल टेक एडवांटेज ऑफ यू एंड बाय देयर टेम्पर। अभी कोई लोग जैसे मैं कहती हूँ मेरे लाइफ में तो कि मेरी अगर इफ यू रियली लव मी यू शुड गेट मैरिड, तो ये कंडीशंस हो गए हैं ना। यू शुड गेट मैरिड एंड यू शुड लिसन टू मी। ऐसे ऐसे आप फोर्स नहीं कर सकते किसी के
आपको जरा शक्ति रूप धारण करना पड़ता है ऐसे सिचुएशंस में। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है, आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता कोई भी चीज में। एग्जाम्पल मैंने दिया है, वैसे बहुत सारे चीजें हैं। लाइक हस्बैंड वाइफ में वो लोग बाउंड्रीज क्रॉस ही कर देते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम ओके, ये पति है, ये माँ है, तो हम अपनी बाउंड्रीज को छोड़ देकर और फिर उनको खुश करने के लिए करते हैं। तो क्या होता है कि अंदर सप्रेशन हो जाती है और फिर वो रिश्ते ज्यादा देर तक टिक नहीं पाते, क्योंकि हमने अपने आप अपने प्यार को मारा है ना। लाइक अपने अपने जो ये क्या बोलते हैं अपने बाउंड्रीज को तोड़ा है ना। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि बाउंड्री सेटिंग, जिसके रिलेशनशिप बिगड़े हैं बिकॉज ऑफ बाउंड्रीज, कि एक दूसरे को क्रॉस कर लेते हैं, बिना पूछे, बिना ये किसी पे थोप। लाइक आप देखते हो ना, लाइक पहले जॉइंट फैमिलीज होती थी, ये माताओं के ऊपर बहुत ये, लाइक फॉर गर्ल्स स्पेशली मैरिड विमेन, उनको उतना देखते ही नहीं थे कि जैसे कि कुछ भी हो, वेरी लो लो सेल्फ एस्टीम से था उनका। बाउंड्री सेटिंग्स के बारे में बहुत कम बताया, पर एक्चुअली ये बहुत डीप है। तो ये मेरे आज के टेकअवे हैं। थैंक यू सो मच अनुराधा सिस्टर। आपने बहुत अच्छे से समराइज किया और काफी सुंदर सुंदर एक्सपीरियंस शेयर किए हमारे साथ में। थैंक यू। ओम शांति सिस्टर। ओम शांति तेजल सिस्टर। वेल, अनुराधा सिस्टर ने बहुत ही अच्छी तरह से सारा कुछ समझा दिया। बहुत ही अच्छा पर्सपेक्टिव था उनका। मेरे लिए आज तो केवल इम्पोर्टेंट 3 टेक अवेज थे। एक तो उन्होंने जो 4 जो साइकिल बताई है, थॉट, इमोशन, रिएक्शन और एक्शन, ये हमें इम्पोर्टेंट है समझना अगर हमें इमोशनली मेच्योर होना है तो। फिर दूसरा, अगर हम अपने आप को किसी एम या गोल से जोड़े रखें तो कोई हमारी पीस या ट्रैंक्विलिटी को डिस्टर्ब नहीं कर सकता। थी वो भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था। और तीसरा कि अगर हमें डिफिकल्ट लोगों से डील करना है तो हमें उनको पहले एम्पैथी देके समझना होगा और फिर उन्हें माफ करना होगा। ये थोड़ा डिफिकल्ट स्टेज है, तो प्रैक्टिस से ये हो सकता है। ये 3 सबसे इम्पोर्टेंट थे मेरे लिए टेक अवेज। और थैंक आपके यू। तीनों टेकअवेज हम लोग होमवर्क के रूप में लेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। सॉरी।